جب اپنا جو ہے وہ آئین، قانون، اخلاقیات کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں. میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آج بھی احترام کروں گا، لیکن حقائق کو سامنے رکھوں گا. آپ وہی ہیں جنہوں نے نواز شریف کی گاڑی کو کندھوں پہ اٹھایا گجرات میں اور پھر عدم اعتماد کی تحریک کر دی. آپ وہی ہیں جو اپنا جو ہے دعائے خیر کر کر زرداری صاحب کو پھول اور مٹھائی دے کے آئے جب آپ کو متحدہ اپوزیشن نے وزیر اعظم نامزد کیا، اور اگلے دن آپ مکر گئے. یہ سیاست کا کیا عجیب کردار ہے پرویز الہی صاحب. آپ کیا اپنا جو ہے لوگوں کو میسج دینا چاہتے ہیں؟ گزارش اتنی ہے کہ یہ سب سے بڑا صوبہ ہے 12 کروڑ عوام کا. کیا اس صوبے میں آج گھروں میں بھوک نہیں ہے، افلاس نہیں ہے؟ کیا بچے آج رات کو دودھ کے بغیر بلکتے بلکتے سو نہیں جاتے، پھر اٹھ جاتے؟ کیا مزدور دیہڑی دار جب گھر جاتا ہے کیا بچے رات کو بھوک سے دامن نہیں نوچتے کہ ابو روٹی کہاں ہے؟ کیا کسان آج کھاد کے لیے مارا نہیں پھر رہا؟ تو یہ اس صوبے کو آئین اور قانون کے تحت آگے بڑھنے دیں. کل آواری ایکسپریس میں کیا ہوا؟ جتھا آیا اور اپنا جو ہے وہ خواتین بھی وہاں پہ موجود تھیں اور یہ حملہ آور ہونا چاہتے تھے، ہوٹل کے اندر گھسنا چاہتے تھے. تو سپریم کورٹ کو ان سب چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے. اگر نوٹس آج نہ لیا تو یہ لوگوں کے گھروں میں گھسیں گے اور یہ کہتا ہے نا کہ میری بندوق کے نشانے پر فنا ہے فنا ہے، یہ خدا نخواستہ لوگوں پر گولیاں برسائے گا. یہ عمران نیازی جو ہے جس نے خود کش بمبار کی جیکٹ پہن رکھی ہے اور جمہوریت کو یہ اپنا جو تاؤ بالا کرنے نکلا ہے، اس کا ہاتھ پکڑنا ہوگا، اس کا راستہ روکنا ہوگا، اس کو مثال بنانا ہوگا، اس کا محاسبہ کرنا ہوگا، اس کا احتساب کرنا ہوگا، ورنہ پھر پچھتاوا رہ جائے گا. ملک ٹوٹ جایا کرتے ہیں جب آئین اور قانون کا جنازہ نکلتا ہے، اور وہ جنازہ آج بڑی دھوم سے نکل رہا ہے. ہم اپنے آنے والی نسلوں کو معاف نہیں کریں گی ہمیں کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے، اور مجھ سمیت سب اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے، گناہگار ہوں گے کہ ہماری نظروں کے سامنے یہ کچھ ہو رہا ہے. معیشت ڈاما ڈول تھی، آج زمین بوس ہو گئی ہے. اسٹاک ایکسچینج کا میں نے بتا دیا آپ کو، ڈالر کا میں نے آپ کو بتا دیا. کیا بنے گا اس ملک کا؟ کہاں سے روٹی کھائیں گے ہم؟ میں پرویز الہی صاحب کو وارن کرنا چاہتا ہوں، کل بھی کیا تھا، آج بھی کیا ہے، کہ پرویز الہی صاحب ہوش کے ناخن لیں. یہ گنڈاسا لے کے جو آپ نکلے ہیں نا، ہمارے پاس بھی گنڈاسا ہے، لیکن ہم آئین اور قانون پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. کل وہاں پہ جتھا آیا نا، وہ تو چند اپنا 50 لوگ تھے، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. پھر جب 10,000 مسلم لیگ نون کا کارکن وہاں پہ آئے گا، وہاں پہ جو کچھ تو خون ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا وہ جو ایم پی ایس ہے وہ ہماری بہنیں بیٹیاں نہیں؟ کیا پرویز الہی اس صوبے کے اسمبلی کا کسٹوڈین نہیں؟ یہ اپنا جو ہے اسپیکرشپ اس لیے لی تھی کہ اپنا وہاں پر خود اپنی ناک کے نیچے توڑ پھوڑ کرائے اور پھر کہے کہ جی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا کہ وہاں پر میز ٹوٹے ہوئے ہیں. او بھائی، یہ آئین ٹوٹ رہا ہے، آئین کا مذاق بن رہا ہے. کرونا میں یہی پرویز الہی جو تھا اس اپنا ادھر ہوٹل میں اپنا اجلاس کرایا. آج کہہ رہے ہیں جی کہ اپنا جو آئینی ذمہ داری پوری کرنی ہے، لیڈر آف دی ہاؤس نہیں ہے اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو کوئی نہیں ہے اتنے دنوں سے. 12 کروڑ کا صوبہ ہے اور کہہ رہے ہیں جی کہ اجلاس نہیں ہو سکتا کہ میز ٹوٹے ہوئے. ان کی نیتیں خراب ہیں، ان کے دل میں چور ہے. یہ اقتدار کی جنگ لڑتے لڑتے آج آئین پاکستان کو سولی پہ لٹکانا چاہتے ہیں. خدا نہ خواستہ. میری بڑی درد مندانہ اپیل ہے یار، میں وزیر اعلیٰ بن کر کیا کروں گا اس ملک میں جب یہاں پر آئین اور قانون جو ہے وہ پامال ہو رہا ہے. لوگ ہنس رہے ہیں ہم پر، ہمارے دشمن آج خوش ہو رہے ہیں. آج اپنا جو ہے وہ وفاق میں جو رولنگ ہے ڈپٹی اسپیکر کی، آج یہ ساری اپوزیشن غدار بن گئی ہے. بلوچستان کے قائدین ہیں، مینگل صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، ایم کیو ایم ہے، باپ ہے. یہ غداری کے سرٹیفکیٹ آج قومی اسمبلی کے پوڈیم پر بانٹے جا رہے ہیں. یہ کیا بنے گا اس ملک کا؟ کون جوڑے گا؟ یہ قوم آگے زخم خوردہ ہے، انتشار ہے. اگر یہ انتشار جو ہے کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو گیا تو سب خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. سب اداروں کو، عدالت کو،
सियासी जमातों को बड़े मुदब्बराना तरीके से अपना रोल अदा करना पड़ेगा, वरना कल हम सब मेंबरान वहाँ पर आएंगे और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम देखेगी, इस सूबे के 12 करोड़ लोग देखेंगे कि हम अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर मुअज़्ज़िज़ रुकन का ये आईनी हक है कि वो वोट डाले, तो जब वहाँ पर खेल तमाशा होगा, परवेज़ इलाही साहब गंडासे की सियासत करेंगे, तो कम से कम कौम देखे तो सही ना कि वो चेहरे कौन से हैं जो आज जमहूरियत को तहोबाला करना चाहते हैं। वो चेहरे कौन से हैं जो खुद ही असेंबली में तोड़ फोड़ कर कर, और सुन ले मेरी बात, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, ये दूसरा वाकया है, खुद ही तोड़ फोड़ करता है अपनी नाक के नीचे और खुद ही अपना जो है सस्पेंड करता है। परवेज़ इलाही साहब, आवाम का राज होगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर लीडर ऑफ द हाउस आवाम के मुअज़्ज़िज़ नुमाइंदों की अक्सर के साथ मुंतखब होगा, लेकिन ये जो आपकी जो डमी इंक्वायरी है, ये इंक्वायरी नहीं होगी। इंशाअल्लाह जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे वो आपकी इंक्वायरी करेंगे और आवाम के सामने झूठ और सच का फैसला करेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और मैं बड़ा आजी से, अल्लाह से डर कर मैं कहना चाहता हूँ आपकी वसासत से कि कल अगर परवेज़ इलाही के पास अददी अक्सरियत है, मैदान में आए, नंबर्स लेके आए, जो जमहूरियत का असूल है, अगर अक्सरियत आपके साथ हुई, खुश दिली से मैं आपको लीडर ऑफ द हाउस कबूल करूंगा। लेकिन इस चक्कर में कि जी बस मैंने वज़ीर आला बनना है, इस सूबे की आवाम के साथ जुल्म ना करो यार। आगे आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, आवाम की उम्मीदें बीच चौराहे टूट चुकी हैं, नौजवानों के ख्वाब, वो 1 करोड़ नौकरियों का, 50 लाख घर का जो वादा किया था, वो बीच चौराहे चिकना चूर हो चुके हैं। ये कौम रो रही है, बिलक रही है। और मैं बता दूं, इस अवाम का मसला ये तरीके अदम एतमाद नहीं है, इस अवाम का मसला डिप्टी स्पीकर की रूलिंग नहीं है, इस अवाम का मसला रोटी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। उस तरफ आज तवज्जो हटाई जा रही है और सफारती ताल्लुकात जो हैं वो पहले ही बहुत लो स्टेप पे थे। इस इमरान नियाजी ने खुदकुश बमबार बनकर सफारती ताल्लुकात का भी जनाजा निकाल दिया और स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स आ रही हैं अमेरिका से कि ये झूठ बोल रहा है। ओ भाई, ये मुल्क है, ये मुल्क ऐसे चलते हैं, ये वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म ऐसे अपना जो है वो बिहेव करते हैं। को मुल्क को कौम का कोई परवाह नहीं। इमरान नियाजी, आज तुम्हारी अना आईने पाकिस्तान से बड़ी हो गई, आज तुम्हारी पसंद नापसंद जो है पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम से ज्यादा अजीज हो गई। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। इंशाअल्लाह इस सूबे में जो बुजदार ने जो तुम्हारे बकौल वसीम अकरम प्लस जो करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े हैं, उसका भी एहतसाब होने वाला है। लोगों को पता है कौन बनी गाला से फोन करता था, अरबों की करप्शन होती थी। और आज क्या फॉरेन फंडिंग केस चीख चीख कर नहीं कह रहा है कि इमरान नियाजी की मनी लॉन्ड्रिंग रंगे हाथों दिन दिहाड़े अवाम के सामने पकड़ी गई। इमरान नियाजी सर्टिफाइड चोर बन गया है सबूतों समेत। ये साद रफीक साहब को अपना जो है इतनी देर नाहक अंदर रखा, राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर मुनशिद का केस बना दिया, सबूत तो मिला कोई नहीं। 4 साल बीत गए। ये अल्लाह का कानून है कि तुम पकड़े गए हो तो सबूतों समेत पकड़े गए हो। आज तोशा खाना में लाखों डॉलर के तोहफे तुमने छुपाए। वो भाई तलाशी करते थे, 4 साल तलाशी ले ली, सबको जेलों में डाल दिया, अपनी अना को तस्कीर तुम्हारी नहीं मिली। अब तुम्हारी तलाशी की बारी आई है तो पतली गली से तुम घूम रहे हो। कान खोल के सुन लो इमरान नियाजी, मैं अल्लाह से डर कर कहता हूं, तुम्हें भागने नहीं देंगे। ये जो अवाम के साथ तुमने खिलवाड़ किया ना, सब बाग दिखाकर, अवाम तुमसे तुम्हारे एक एक जुर्म का हिसाब लेंगे। तुम्हें तोशा खाने का, तुम्हें फॉरेन फंडिंग केस का हिसाब देना होगा। इस सूबे के साथ जो तुमने साजिश की बुजदार को लगाकर, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। तुम्हें कहीं भागने नहीं दिया जाएगा। और तुम्हारे अपने गवर्नर सरवर साहब ने जो अवाम के सामने राज अफशा किए कि मुझ पर प्रेशर था कि खिलाफ आइन काम करो, और उनकी जो अपना जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट थी वो ये थी कि मुझे खुशी है कि मैं आज गवर्नर तो नहीं रहा, लेकिन किसी गैर आइनी इकदाम का मैं मुर्तकब नहीं हुआ। अलीम खान
साहब जो तुम्हारे अपने दस्ते राज थे, कल जो उन्होंने होशर व करप्शन की दाग थे, जो इंतजामिया के लोग हैं, और स्पीकर को कस्टोडियन ऑफ द हाउस कहा जाता है, लेकिन जो खिलवाड़ परवेज राय ने रचाया है, इंशाल्लाह इसका यौम हिसाब आएगा। एक ही कर देना साहब, अभी ये हुकूमत की तरफ से इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है परवेज राय साहब से, और अब ये सुनने में आ रहा है कि जो इजलास है कल जो पंजाब असेंबली का होना था वो 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। ये सरीहन कानून की खिलाफ वर्जी है। यानी 6 मिनट में जो इजलास बुलाया गया था लीडर ऑफ द हाउस का, वो 6 मिनट में एडजर्न कर दिया गया। नंबर 1, उसमें एजेंडा एक ही था कि लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब होना है। फिर इन्होंने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी 6 को हम अब करेंगे। गैर आईनी काम किया, गैर कानूनी काम किया। अब 6 को स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में दी, किसने दी? मैंने नहीं दी, साद रफीक साहब ने नहीं दी, अता तारड़ साहब ने नहीं दी, राणा सनाउल्लाह साहब ने नहीं दी। एडवोकेट जनरल पंजाब सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि हम जी आईन और कानून के मुताबिक कल इंतखाबात कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने स्टेटमेंट है। अभी वो स्टेटमेंट चल रही थी, अभी मैं उसको डाइजेस्ट कर रहा था, और वहां से आ गया जी कि ये इजलास 6 के बजाय 16 को कर दिया गया। और कितनी भोंडी ग्राउंड है, वो फर्नीचर टूट गया। ओ भाई, यहाँ पे आईन टूट रहा है, तुम्हारे दिलों के अंदर कालक है, तुम इस अपना कौम के साथ, आईन के साथ घिनौना मजाक कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट को आज इसका नोटिस लेना चाहिए। और मैंने बता दिया है कि कल बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान के साथ मैं कल असेंबली में जाऊंगा, और आपको दावत देता हूं, आप वहां पर आइए, अपना जो है वहां पर अदली अक्सर गिने, जो 3 को भी पूरी थी और कल भी इंशाल्लाह पूरी होगी। उसके बाद फिर अगर इन्होंने आइन और कानून का जनाजा निकाल कर असेंबलियों के दरवाजे बंद कर दिए हैं, इक़्तिदार इनको इतना अजीज है, तो कल फिर अवाम के सामने मैदान लगेगा। साहब एक मिनट, और ये बात आप नोट कर लें और इसको हाईलाइट भी करें कि एडवोकेट जनरल जो है उसने ऑन बिहाफ ऑफ पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बयान दिया है, और उसके सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान देने के कोई 25 मिनट बाद जो है इन्होंने ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो एक आईनी तौर पे सबसे बड़ा जो है वो अदारा है, उसके यानी उसका मजाक उड़ाने के मुताबिक है, और ये सरीहन तौहीन अदालत है। और ये राणा सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं ना, मैं इसमें सिर्फ ऐड ये करूंगा, वहां पे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, यहाँ पे इमरान नियाजी गवर्नर को बुलाकर, परवेज लाई को बुलाकर, यानी आइन के खिलाफ तो साजिश कर ही रहा है। यानी ये पैरेलल अदालत चल रही है फिर इमरान नियाजी की, उधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट दे रही है कल इजलास आइन और कानून के तहत बुलाया जाएगा, और इमरान नियाजी की अदालत जो कह रही है कि जी हम नहीं मानते, हम अपना सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट को नहीं मानते, अपने एडवोकेट जनरल की स्टेटमेंट को नहीं मानते, हमने इजलास 10 दिन के लिए मौखर कर दिया। ये मैं अदालत उस्मा को बड़ी आजी से फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, कैसी मिसालें कायम कर रहे हैं। हम साहब क्या एस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल होना कोई सोची समझा कोई प्लान के तहत है? क्योंकि अब तमाम अपोजिशन तो बार बार कह रही है कि आप आए, वो जो एक फॉरेन प्लॉट है उसकी बात आके कह रहे हैं, जो भी सिक्योरिटी काउंसिल में जो उसकी मीटिंग ऑफ द मिनट्स है उसे डिस्कस करें, उनका खामोश होना, क्या इसे समझते हैं एक सोची समझी साजिश है? ये भी यहाँ एक प्लान है। साथ साथ ये भी साथ इसके साथ एक ऐड भी कर लीजिएगा, क्या अपना हक लेने के लिए टीएलपी की तरह लॉकडाउन करना और छतों की तरफ बाहर निकलना वही फिर पाकिस्तान में रह जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पहला आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि अदालत उज़्मा ने सेक्रेटरी डिफेंस को तलब किया हुआ है। हमें सेक्रेटरी डिफेंस साहब जो हैं उनकी वहाँ पे पेशी का और उनकी बात का इंतज़ार करना चाहिए, और अदालत बेहतर जानती है वो क्या सवाल करेगी। हम समझते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और पता लगना चाहिए कि कौन सी गैर मुल्की साजिश हुई है। कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई, ये इमरान खान की नाकामी और उसकी बदनज़मी और उसकी लूट मार उसकी हुकूमत के दौर की जो है, जिसके नतीजे में भूख बढ़ी है, ये उसके नतीजे में एतमाद आई है। और आप सब गवाह हैं कि पूरी कौम का प्रेशर था अपोजिशन पे, बल्कि शिकायत लोग करते थे कि आप लोग इस हुकूमत को निकालते क्यों नहीं है।
تو یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ عوامی دباؤ ہے جس نے ہم سب کو اس بات پہ لا کے مجبور کیا ہے کہ ہم عمران خان کو نکال لیں اور اس نحوست سے پاکستان کی جان چھڑائیں. ایک صبر کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں.